हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 4 का जो बिजनेस अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग टू यानी कि सेवा पड़तर पद्धति में उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर 7 कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे इस सब में ऐसा बोला गया है कि पब्लिक हेल्थ सेंटर रन्स अ डॉक्टर हाउस यूनिट्स फॉर द पर्पस इट हैज हायर्ड अ बिल्डिंग at the rent of rupees 20,000 per month with the understanding that is would bear the repairs and maintenance charges. Also, the hospital consists of 25 beds and 5 more beds can be comfortably accommodated when the occasions demand. The patient's staff attached to the hospital is as follows. એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતના આપેલ છે કે જાહેર આરોગ્ય કેન્દ્ર જે ડોક્ટર હાઉસ હોસ્પિટલ ચલાવે છે તેના માટે ₹20,000ના માસિક ભાડાની એક મકાન હોસ્પિટલ માટે ભાડે રાખેલ છે। હોસ્પિટલમાં 25 પથારીઓની વ્યવસ્થા છે અને જરૂરિયાત ઊભી થાય ત્યારે 5 વધારાની પથારીઓ ગોઠવી શકાય છે। હોસ્પિટલની કાયમી સ્ટાફ નીચે મુજબ છે। यहाँ पे दिया गया है कि 2 supervisors each at salary of rupees 2,000 per month, 4 nurses each at salary rupees 1,200 per month, 2 ward boys each at the salary of rupees 600 per month. The hospital was open for the patients for all the 365 days in the year. The following details are available for the year. એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે 2 સુપરવાઇઝર દરેકનો માસિકનો પગાર 2,000, 4 નર્સિસ દરેકનો માસિક પગાર 1,200 રૂપિયા અને 2 વોર્ડ બોય દરેકનો માસિક પગાર રૂપિયા 600 અને હોસ્પિટલના દર્દીઓને સારવાર માટે 365 દિવસ ખુલ્લી રાખવામાં આવતી હતી અને 1 વર્ષના આંકડા નીચે મુજબ આપેલા છે। ફર્સ્ટ यहाँ पे for 120 days in the year the hospital had the full occupancy of 25 patients per day એટલે કે વર્ષના 120 દિવસોમાં તમામ 25 પથારીઓનો વપરાશ થયો હતો। સેકન્ડ another 80 days it had on the average 20 beds only occupied per day એટલે કે 80 દિવસો 20 પથારીઓ સરેરાશ ઉપયોગ થયો હતો। उसके बाद थर्ड है यहाँ पे but there were occasions when the beds were full, extra beds were hired at the charges of rupees 20 per bed per day and this did not come to more than 5 extra above the normal એટલે કે જ્યારે વધારાની પથારીની ગોઠવણી થાય ત્યારે દરેક પથારીને હોસ્પિટલ રૂપિયા 20નું ભાડું આપી બહારથી વ્યવસ્થા કરી હતી અને આ માટે ભાડાના રૂપિયા 8,000 ચૂકવ્યા હતા। એક દિવસે વધુમાં વધુ 5 વધારાની પથારી ગોઠવી શકાય છે અને આ માટેની व्यवस्था ऊपर एक मुजब जणावेल छे। Then उसके बाद capacity on extra beds incurred for the whole years amounts to rupees 8,000. These extra beds arrangements was made during the 120 days mentioned in above one. Then उसके बाद the fees were paid on the basis of their service on the expert visiting doctors. Amount of their fees were worked out of rupees 40,000 per month. The other expenses for the year were as under એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે બહારથી નિષ્ણાત ડોક્ટરો તેમણે આપેલી સેવા મુજબ વળતર આપવાનું હતું અને જે 40,000 માસિક થવાના હતા। और यहाँ पे क्या दिया गया तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, फूड सप्लाइड टू पेशेंट्स, एक्सपेंसेस ऑफ अदर सर्विस टू पेशेंट्स, लॉन्ड्री चार्जेस फॉर क्लॉथ। इसी तरह से यहाँ पे एक्सपेंसेस आप लोगों को दिए गए थे। उसके बाद लास्ट में क्या दिया गया है तो इफ द हॉस्पिटल रिकवर्ड एन overall amounts of rupees 400 per days on an average from the each patient, which is the profit or loss per patients made by the hospital during the year એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે જો દર્દી પાસેથી પ્રતિ દિવસના રૂપિયા 400 चार्ज वसूल કરવામાં આવે तो नफो થશે કે नुकसान તે શોધવાનું છે। तो अभी यहाँ पे हम लोग सम कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें आप लोगों को करना क्या है तो सबसे फर्स्ट फिक्स और वेरिएबल ओवरहेड्स लिख देने हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ए करके लिखेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस और बी करके लिख देंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस, ठीक है। इसी तरह से लिख देंगे। देन उसके बाद सबसे फर्स्ट हम लोग एक्सपेंसेस देखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर सबसे फर्स्ट आप लोग को क्या दिया गया तो ₹20,000 क्या है रेंट है किसका तो यहाँ पे हॉस्पिटल का है और यहाँ पे पर मंथ दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे तो सबसे फर्स्ट लिखेंगे हॉस्पिटल रेंट और उसका अमाउंट किस तरह से आएगा तो ₹20,000 पर मंथ है इंटू 12 मंथ्स आप लोगों को करना होगा। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 2,40,000 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे सुपरवाइजर्स की सैलरी की बात की गई है कि 2 सुपरवाइजर है उनकी सैलरी कितनी है 2,000 पर मंथ है। तो हम लोग क्या करेंगे सेकंड करके लिखेंगे सुपरवाइजर सैलरी और अमाउंट किस तरह से आएगी तो 2 इंटू 2,000 और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 12 मंथ्स के साथ। तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 48,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर की यहाँ पे नर्सिस की बात की गई है तो हम लोग लिख देंगे नर्सिस और वो कितनी है तो 4 नर्सिस है उसका पर मंथ 1,200 अमाउंट यानी कि इतना
इतने पैसे है और इंटू 12 मंथ्स हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को 57,600 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद फोर्थ नंबर का वॉर्ड बॉयज दिया गया है, ठीक है। तो वो कितने हैं, तो वो 2 है और उनका पर मंथ कितना है रुपीस, तो 600 है और 12 मंथ्स, इस तरह से आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 14,400 का आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखें तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया गया है 14,400, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फिफ्थ नंबर का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, और इसका अमाउंट दिया गया है 14,400 रुपीज़ का। देन उसके बाद आगे यहाँ पे फूड सप्लाई और ये सब दिया गया है, ये क्या है, हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस है। तो हम लोग नीचे लिख देंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस में कितना है फूड सप्लाईज टू पेशेंट्स, और इसका अमाउंट कितना दिया गया है, तो 1,76,000। तो वो हम लोग लिख देंगे फूड सप्लाइड 1,76,000। देन उसके बाद दिया गया कि एक्सपेंसेस ऑफ अदर सर्विस टू पेशेंट्स, और इसका अमाउंट कितना है ₹48,000। तो वो भी हम लोग सेकंड करके लिख देंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं लिख रही हूँ एक्सपेंसेस टू सर्विस, और अमाउंट आएगा ₹48,000। उसके बाद थर्ड नंबर का आप लोगों को यहाँ पे दिया गया लॉन्ड्री चार्जेस फॉर क्लॉथ्स, रुपीज़ कितना है 1,12,000। तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे लॉन्ड्री, ठीक है। और इसका अमाउंट कितना है 1,12,000। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आगे दिया गया है कि मेडिसिन सप्लाइड रुपीज़ 1,40,000 का दिया गया है। तो वो भी लिख देंगे फोर्थ नंबर का मेडिकल सप्लाई रुपीज़ 1,40,000। देन उसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन एक्सरे एक्सेट्रा कितना है 2,60,000। तो वो भी फिफ्थ नंबर में हम लोग लिखेंगे, यानी कि वेरिएबल में आएगा कि कॉस्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और अमाउंट यहाँ पे आएगा 2,16,000। देन उसके बाद यहाँ पे दिया गया जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 1,99,600। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 6 नंबर की इंफॉर्मेशन में कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या तो फिर चार्जेस 1,99,600, इसी तरह से, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस आप लोगों को नहीं दिया गया है। तो फाइनल अभी हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोगों को जो पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दी गई है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हम लोग नीचे यहाँ पे देखेंगे तो आप लोगों को ऐसा बोला गया है कि यहाँ पे कैपेसिटी एंड एक्स्ट्रा बेड्स इनकर्ड फॉर द होल ईयर अमाउंट टू ₹8,000, ठीक है। तो ये यानी कि कैपेसिटी एक्स्ट्रा लाने बेड की लाने के लिए कितना है ₹8,000 का एक्सपेंस हुआ है। तो वो भी क्या हो जाएगा वेरिएबल एक्सपेंसेस, यानी कि ये कोई फिक्स एक्सपेंस हमारा नहीं है इसीलिए। तो 6 नंबर में हम लोग लिखेंगे एक्स्ट्रा बेड, ठीक है, और उसका अमाउंट कितना आएगा ₹8,000। देन उसके बाद आगे यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि द फीस वेर पेड टू द बेसिस ऑफ देयर सर्विस टू देयर एक्सपर्ट विजिटिंग डॉक्टर्स, अमाउंट ऑफ देयर फीस वर्क आउट द ₹40,000 पर मंथ दिया गया है। यानी कि जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर को बुलाने के लिए कितना है, तो 40,000 पर मंथ का फीस दिया गया है। तो वो भी यहाँ पे हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस हो जाएगा डॉक्टर फीस, और कितना आएगा, तो ₹40,000 पर मंथ है इंटू 12 मंथ्स के साथ हम लोग करेंगे। तो फाइनल आप लोगों को 4,80,000 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जितने भी एक्सपेंसेस दिए थे वो सभी हम लोगों ने ले लिए हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ए का सबसे फर्स्ट टोटल कर देंगे, यानी कि ये सभी का आप लोगों को टोटल कर देना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा 5,74,000, ये हो जाएगा ए का टोटल। देन उसके बाद बी का टोटल हम लोग करेंगे तो बी का यहाँ पे टोटल हो जाएगा 11,80,000, ठीक है। उसके बाद फाइनल हम लोग टोटल कॉस्ट निकालेंगे, यानी कि ए प्लस बी कर देंगे तो आप लोगों को 70,54,000 का आंसर मिल जाएगा, इस तरह से, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया गया है, तो आगे यहाँ पे लास्ट में आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि इफ द हॉस्पिटल रिकवर एन ओवरऑल अमाउंट ₹400 पर डे on an average from each patient, what is the profit or loss per patient made by the hospital during the year? એટલે કે ગુજરાતીમાં એવી રીતનું આપેલું છે કે જો દર્દી પાસેથી प्रतिदिनના ₹400 चार्ज वसूल કરવામાં આવે तो नफो થાય કે नुकसान। तो यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से करना होगा, तो 400 दिया गया है कि क्या है, तो पर डे का है, ठीक है। और फाइनल आप लोगों को क्या करना होगा, टोटल बेड डेज निकाले होंगे। तो वो किस तरह से निकलेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेशन किस तरह से करना होगा, 120 डेज है और उसमें बेड्स कितने हैं, तो 25 बेड्स है। इसी तरह से आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो फाइनल आप लोगों को 3,000 का आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे कितने हैं, तो 80 डेज है और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 20 बेड्स के साथ। यहाँ पे कितने हैं, 20 बेड्स। तो आप लोगों को यहाँ पे 1600 का आंसर मिल जाएगा। प्लस अभी एडिशनल बेड्स में क्या किया है, तो 8,000 रुपीज से, ठीक है, डायरेक्टली क्या दिया गया है 8,000 रुपीज से, मगर कितने बेड्स है वो तो मालूम ही नहीं है। तो यहाँ पे
कितना आप लोगों को दिया गया है 20 पर बेड्स पर डे, इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। तो आपको क्या करना होगा 8000 उसको डिवाइडेड बाय 20 कर देना होगा, तो आप लोगों को 400 का आंसर मिल जाएगा। तो अभी आप लोगों को टोटल करना होगा 3000 प्लस 1000 और प्लस ये क्या हो जाएगा 1000, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 5000। तो फाइनल आप लोगों को इनकम कितनी हो रही है, तो 5000 इंटू 400 आप लोगों को करना होगा। तो फाइनल यहाँ पे 20 लाख का आंसर आएगा और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा 2,46,000। तो इतना क्या है हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, એટલે કે આટલો નફો થશે। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पर यूनिट निकालेंगे, यानी कि पर बेड। तो कॉस्ट हमारा कितना आया था, तो 70,54,000 आया था, उसको डिवाइडेड बाय टोटल बेड डेज कितने आए थे हमारे 5000। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा 350.80, ठीक है, ये हो गया पर बेड। इसी तरह से ये रुपीस हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे आप लोगों को प्रॉफिट फाइंड करना होगा पर यूनिट। तो इनकम हमारी कितनी हुई है पर यूनिट है 400, ठीक है। इनकम कितनी है पर यूनिट 400 है, उसमें से माइनस हम लोग क्या करेंगे, तो एक्सपेंस हमारा कितना आया पर बेड, तो 350.80। तो यानी कि प्रॉफिट जो मिलेगा पर यूनिट वो कितना होगा 49.2। इस तरह से प्रॉफिट आप लोगों को अमाउंट में भी मिल गया और यहाँ पे पर बेड डेज में भी मिल गया, ठीक है। तो यानी कि जब भी आप लोगों को इस टाइप का सम एग्जाम में पूछा जाए तो इस तरह से सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 7 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।